گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ٹیچنگ ہسپتالوں میں آؤٹ ڈورز کی ہڑتال کا 15واں روز ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور سے ڈاکٹرز اور طبی عملہ غائب ہے۔ ہڑتال کے باعث علاج معالجہ متاثر ہو چکا ہے، مریض شدید پریشان ہے۔ انڈور میں بھی معمول کے درجنوں آپریشنز ملتوی ہو گئے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کی انتظامیہ کے آؤٹ ڈورز چلانے کی کوششیں اس وقت جاری ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں علاج کی بندش کا خمیازہ مریض بھگتنے پر مجبور ہے۔ سرکاری علاج گاہیں ٹھیکے پر دینے کے خلاف ہڑتال جاری ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ٹیچنگ ہسپتالوں میں آؤٹ ڈورز کی ہڑتال کا آج 15واں روز ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور سے ڈاکٹرز اور طبی عملہ غائب ہو چکا ہے۔ ہڑتال کے باعث علاج معالجہ شدید متاثر ہے، جبکہ مریض پریشان۔ انڈور میں بھی معمول کے درجنوں آپریشنز ملتوی ہو گئے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کی انتظامیہ کی آؤٹ ڈورز چلانے کی اس وقت کوششیں جاری ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں علاج کی بندش کا خمیازہ مریض بھگت رہے ہیں۔ سرکاری علاج گاہیں ٹھیکے پر دینے کے خلاف ہڑتال جاری ہے اور آج ہڑتال کا 15واں روز ہے۔ آؤٹ ڈور ہڑتال جاری ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور سے ڈاکٹرز اور طبی عملہ غائب ہو چکا ہے۔ ہڑتال کے باعث علاج معالجہ متاثر ہو چکا اور مریض شدید پریشان ہیں۔ انڈور میں بھی معمول کے مطابق جو آپریشنز ہونے تھے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کی انتظامیہ کے آؤٹ ڈورز چلانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں علاج کی بندش کا خمیازہ اس وقت مریض بھگت رہے ہیں اور سرکاری علاج گاہیں ہیں ٹھیکے پر دینے کے خلاف ہڑتال جاری ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ٹیچنگ ہسپتالوں میں آؤٹ ڈورز کی ہڑتال کا یہ 15واں روز ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور سے ڈاکٹرز اور طبی عملہ غائب ہے۔ ہڑتال کے باعث علاج معالجہ متاثر ہے، مریض پریشان نظر آتے ہیں۔ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے۔ جی زاہد چودھری۔ جی، یہ سرکاری علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جو ٹیچنگ ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور کی ہڑتال اور انڈور میں جو کام ہے وہ 15 روز سے بند ہے۔ آج 15واں روز ہے آؤٹ ڈور کی ہڑتال کا۔ تمام ٹیچنگ ہسپتال جو ہیں وہ پنجاب بھر کے ان کے آؤٹ ڈورز میں جو ہے وہ ڈاکٹرز، نرسز اور جو طبی عملہ ہے وہ ڈیوٹی سے غائب ہے اور اس کی وجہ سے جو علاج معالجہ ہے وہ بدترین تعطل سے دوچار ہے اور اس کا خمیازہ مریضوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مریض در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ہسپتالوں کی جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے پرچی کاؤنٹرز کھلوا کر جو ہے وہ ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز چلتے ہوئے دکھانے کی گزشتہ کئی روز سے جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے اس کو بدترین ناکامی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور اب نرسز بھی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بھی جاری ہے اور متعدد درجنوں کے حساب سے جو ڈاکٹرز ہیں، اس کے علاوہ نرسز اور پیرامیڈکس، ان کو یا تو معطل کیا جا چکا ہے یا پھر ان کو جو ہے وہ ملازمت سے برطرف کیا جا چکا۔ لیکن اس کے باوجود جو احتجاج اور ہڑتال ہے اس کی شدت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور پیر سے مکمل طور پر جو گرینڈ ہیلتھ الائنس نے آؤٹ ڈور کے ساتھ ساتھ انڈور کے بھی جو ہے وہ مکمل جو ہڑتال ہے اس کا اعلان کر رکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ منڈے سے انڈور کے ساتھ آؤٹ ڈور کے ساتھ ساتھ جو انڈور ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ کام نہیں کیا جائے گا، اور جس سے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مزید سنگین صورت اختیار کرنے کا خدشہ ہے۔ مزید سنگین صورت اختیار کرنے کا خدشہ ہے۔ بہت شکریہ زاہد چودھری۔ حکومت پنجاب نے کابینہ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر کو مزید بااختیار کر دیا ہے۔ کابینہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کے اختیارات میں اضافے کے ساتھ توسیع بھی کر دی گئی۔ کابینہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر اب جیل ٹرائل کے امور پر بھی فیصلہ کر سکے گی۔ کابینہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کو اب پروزیکیوشن سے متعلق بھی اختیارات مل گئے ہیں۔ کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر اب وزیر قانون کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ پنجاب کابینہ کی قانون اور انصاف کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی توسیع کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر سے خواجہ سلمان رفیق قانون و انصاف کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہو گئے ہیں۔ کابینہ کمیٹی میں مجتبیٰ شجاع الرحمن، چودھری شافی حسین، بلال اکبر خان شامل ہیں۔ کمیٹی کا مقصد پنجاب بھر میں قانون و امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ دہشت گردی کے متاثرین کو معاوضہ دینے کی منظوری کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ قانون نافذ کرنے کے لیے جے آئی ٹیز کی منظوری کا اختیار بھی کمیٹی کو حاصل ہوگا۔ مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے راؤ دلشاد سے، بتائیے گا۔
पंजाब हुकूमत ने पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बड़ा अहम फैसला किया है, और ना सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो तोसी दी गई है, बल्कि इसकी तश्कील नौ भी कर दी गई है। और अब इस कमेटी में जो है वो खुसूसी तौर पर सूबाई वज़ीर कानून मलिक शुएब अहमद भरत को शामिल किया गया है। आपको बताएं कि इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, जबकि इस कमेटी में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान शामिल हैं। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत व औक़ाफ़ चौधरी शाफ़े हुसैन इस कमेटी का हिस्सा हैं, जबकि आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ख़जाना व पार्लिमानी अमूर मियाँ मुज्तबा शुजा रहमान भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। आपको बताएं कि इसके जो TORs हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है, तकरीबन 20 से ज़ायद TORs हैं, जिनके मुताबिक इस कमेटी को मज़ीद बाइख्तियार बनाया गया है। जेलों से मुतल्लिक तमाम तर फैसले, दहशतगर्दी की अदालतों से मुतल्लिक, दहशतगर्दी के ट्रायल से मुतल्लिक तमाम तर फैसले ये कमेटी जो है वो कर सकेगी। एमरजेंसी सिक्योरिटी अखराजात की मंजूरी भी अब यही कमेटी देगी। मीडिया पर चलने वाली मुहिम्मात के हवाले से भी जो बाकायदा मंजूरी है वो इसी कमेटी से ली जा सकेगी। इसी तरह से अहम तकरीबात और सिक्योरिटी इंतजामात पर कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेगी, जबकि इस कमेटी के हवाले से बताया गया कैदियों की मशरूत रिहाई के मुकदमात की मंजूरी भी यही कमेटी दे सकेगी। इसी तरह से जो पुलिस सर्कल्स और पुलिस जो पोस्ट्स हैं उनकी हदूद का तयन भी लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी कर सकेगी। कमेटी माहरीन को मुआवनत के लिए ज़रूर तलब कर सकेगी, लेकिन माहरीन के पास वोट देने का हक जो है वो नहीं होगा। वोट देने का हक सिर्फ इन्हीं मेंबर्स को होगा। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत जो ट्रायल का इशू है इसकी भी मंजूरी दी जा सकेगी, जबकि इसके साथ साथ दीगर मुकदमात के जेल ट्रायल के हवाले से भी यही कमेटी अब बाइख्तियार होगी और यही कमेटी फैसला करेगी। इस हवाले से आपको बताएं कि इसकी जो कॉपी है वो तमाम सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के PSO और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो सेक्रेटेरिएट हैं, पब्लिक सेक्रेटेरिएट हैं, उनको अरसाल कर दी गई है। यूँ पब्लिक अकाउंट्स ये जो पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर है, ना सिर्फ इसकी तोसी की गई है बल्कि इसके इख्तियारात में भी इजाफा करके तश्कील नौ भी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन जोनल ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का फौरी नौकरियों पर बहाल करने का मुतालिबा सामने आ रहा है। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निकाल दिया है। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद मुजाहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन ने आज स्टोरों को बंद करके जोनल ऑफिस लाहौर स्कीम मोड़ के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है, और इस एहतजाजी मुजाहरे में मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक थी, जिसमें मुतालबा किया जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को नौकरियों पर फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानब से यूटिलिटी स्टोरों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निकाल दिया गया है। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे, जिस पर वफाकी हुकूमत से इन मुलाजमीन की बहाली के नारे गले थे। मुजाहिरीन का यह कहना था कि मुनाफा में चलने वाले इदारे को दानिस्ता तौर पर तबाह किया जा रहा है। एक साल कबल 44 अरब रुपए की सेल करने वाला यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन का इदारा खजारे में कैसे चला गया है। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि एक साल से जो मुख्य बुनियादी अशिया ज़रूरी हैं उनकी सप्लाई नहीं की जा रही, तो वो सेल क्या करें। इससे आम सारफ जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारता है उसके हकूक भी पामाल हो रहे हैं। जब ये मुनाफा बख्शी इदारा है तो फिर इसको बंद करने का कोई जवाब नहीं बनता। मुजाहिरीन ने इस मौका पर वफाकी हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर हुकूमत इनकी एहतजाज पर और कॉल पर कान ना धरे तो फिर पूरे मुल्क के यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन स्टोरों को ताले लगाकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे, और इस्लामाबाद में जो है वो ये एहतजाजी मुजाहरा पार्लियामेंट हाउस के सामने किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद।
अभी आपको बताएं, पार्किंग बहरान के हल के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाने का फैसला किया गया है। पार्किंग प्लाजों की तामीर से मुतालिक प्लान तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शहर में पार्किंग के बढ़ते हुए मसाइल का नोटिस लेते हुए शहर भर में पार्किंग प्लाजों की तामीर का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर जामे प्लान पेश करने की हिदायत जारी की है। पंजाब हुकूमत ने शहर के सबसे ज्यादा पार्किंग दबाव वाले इलाकों की निशानदही करके 13 मकामात पर पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए इब्तदाई वर्किंग शुरू कर दी है। रिनल चौक, टाउन हॉल, सर्कुलर रोड समेत दीगर अहम मकामात पर मनसूबाबंदी का आगाज किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हिदायत की है कि सबसे ज़्यादा मुतासर मकाम पर पार्किंग प्लाजे की तामीर के फौरी इकदाम किए जाएँ और तमाम निशानदही शुदा मकामात का असर नौ जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश की जाए। ये इकदाम शहरियों को रोज़मर्रा की ट्रैफिक और पार्किंग मुश्किलात से निजात दिलाने और लाहौर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। पंजाब भर के 38,000 सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल का क़याम हो गया। इंतखाबात 21 मई को करवाए जाएंगे। शेड्यूल जारी कर दिया गया। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 9 मई मुकर्रर की गई है, जबकि 12 मई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी 12 मई को दिया जाएगा। 13 मई को स्कूलों में पोस्टर आवेज़ा किए जाएंगे। उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम 16 मई तक जारी रख सकेंगे। 20 मई तक बैलेट पेपर्स और इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल की जाएंगी। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री पंजाब ने स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाब के हवाले से तमाम अथॉरिटीज़ को हुक्म जारी कर दिया है। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों के लिए बुरी खबर है और फेज 2 में आउटसोर्स होने वाले स्कूलों को नॉन सैलरी बजट नहीं दिया जाएगा। नॉन सैलरी बजट की मद में सूबे भर के स्कूलों को 3.5 अरब रुपए फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं, जबकि मज़कूरा फंड्स दूसरे फेज में आउटसोर्स होने वाले स्कूलों को नहीं मिलेंगे। आपको बताते चलें इस हवाले से कि आउटसोर्स होने वालों के लिए ये बुरी खबर है। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों के लिए बुरी खबर है। फेज़ 2 में आउटसोर्स होने वाले स्कूलों को नॉन सैलरी बजट नहीं मिलेगा। नॉन सैलरी बजट की मद में सूबे भर के स्कूलों को 3.5 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए। लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए। मज़कूरा फंड्स दूसरे फेज में आउटसोर्स होने वाले स्कूलों को नहीं मिलेंगे। दूसरे फेज में आउटसोर्स होने वाले स्कूलों की तादाद 4,789 है। इससे कबल 5,686 स्कूल फेज 1 में आउटसोर्स किए जा चुके हैं। फंड्स नया माली साल शुरू होने से कबल फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद है, हमसे बात कर लेते हैं। जी जुनेद। जी, फेज 2 में जो आउटसोर्स स्कूल किए गए थे उनके लिए बुरी खबर है कि उनको नॉन सैलरी बजट जो है वो हुकूमत की जानब से नहीं मिलेगा, बल्कि नॉन सैलरी बजट जो है उनका रोक दिया गया। और इसी हवाले से अगर बात की जाए दूसरे फेज में आउटसोर्स होने वाले स्कूलों की तादाद तो 4,779 स्कूल जो हैं वो आउटसोर्स किए गए थे दूसरे मरहले में, जबकि पहले मरहले में 5,500 स्कूल आउटसोर्स किए गए थे जिनकी को हुकूमत की जानब से नॉन सैलरी बजट जो है वो दिया जाता था। ताहम अब नहीं मिलेगा। 3.5 अरब रुपए जो है वो फंड जारी किए गए हैं, जिसमें लाहौर के लिए जो है वो 12.5 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद।